تاریخ کے اوراق پر درج ایک ایسی سچی کہانی کہ جس کو سن کر خوف کو بھی خوف محسوس ہوتا ہے۔ یہ قصہ ہے 21 سال کی حسین و جمیل لڑکی کے عشق میں مبتلا دیوانے ڈاکٹر کا، جو اسے گانے سناتا، کھانا کھلاتا، اس کے ساتھ رقص کرتا اور اسی کے ساتھ سوتا تھا، لیکن یہ سب کچھ وہ 7 سالوں تک کرتا رہا، اپنی محبوبہ کی لاش کے ساتھ۔ 1877 یہ ایک گہری سیاہ سرد رات تھی۔ جرمنی میں رہائش پذیر 16 برس کا کارل ٹینزلر اپنے کمرے میں لحاف اوڑھے سو رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے خواب کے پردے پر ایک دہشت ناک قبرستان کا منظر تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ رات کے وقت ایک قبرستان میں موجود ہے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے آہٹ سنائی دی۔ ٹینزلر بجلی کسی تیزی سے مڑا اور اس نے دیکھا اندھیرے کو چیرتے ہوئے سفید لمبے لباس میں ملبوس ایک لڑکی آہستہ آہستہ قریب آتی جا رہی ہے۔ اس کے قدم قبرستان کی زمین سے کچھ اوپر ہوا میں اٹھے ہوئے تھے اور وہ گویا ہوا میں تیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اس کے روبرو آ کر رک گئی۔ سفید لباس میں ملبوس یہ لڑکی کسی روح کی مانند دکھائی دے رہی تھی۔ اس کو اس انداز میں اپنی جانب آتا دیکھ کر ٹینزلر کی دہشت کے مارے بری حالت تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اس کے پاؤں کئی من وزنی ہو گئے ہوں اور وہ اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکتا ہو۔ ٹینزلر اپنی خوف سے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ لڑکی نے مسکراتے ہوئے ٹینزلر کی جانب دیکھا، پھر اس حسین لڑکی کے ہونٹ کھلے اور اس کی آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، میرا نام اینا کانسٹینٹیا ہے، میں 120 سال قبل پیدا ہوئی تھی، میں تمہاری رشتہ دار ہوں، اس لیے مجھ سے ڈرو مت۔ ٹینزلر کو اس کی آواز سنائی دی مگر اس کی حالت کافی خراب ہو چکی تھی۔ وہ وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہیں سکتا تھا۔ لڑکی پھر بولی، میری بات غور سے سنو، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں ایک لڑکی ملے گی، اس کا نام الینا ہوگا۔ وہ لڑکی موت کے دہانے پر ہوگی مگر تمہیں ہر حال میں اس کو زندہ رکھنا ہوگا۔ تم اس کو ہر صورت بچاؤ گے اور اسے موت سے دور کرو گے۔ یہ سب سن کر ٹینزلر حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ کچھ حوصلہ اکٹھا کر کے ٹینزلر نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ یہ سن کر وہ روح جیسی نظر آنے والی لڑکی دھیرے سے مسکرا دی اور اس کی مسکراہٹ سے حوصلہ پا کر اس نے اپنا سوال دوبارہ دہرا دیا۔ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، ٹینزلر وعدہ کرو کہ تم اس لڑکی کو بچانے کی پوری کوشش کرو گے، اسے زندہ رکھو گے، کبھی مرنے نہیں دو گے۔ یہ کہتے ہی اس نے ٹینزلر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ٹینزلر نے محسوس کیا کہ اس لڑکی کا ہاتھ برف کی طرح سرد اور ٹھنڈا تھا۔ ٹینزلر نے وعدہ کر لیا کہ وہ اس لڑکی کو بچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا، چاہے اسے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ یہ سن کر لڑکی گویا اطمینان سے دھیرے سے ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی میں بڑا اطمینان سا تھا۔ ٹینزلر نے اس سے پوچھا، وہ اس لڑکی کو کیسے پہچانے گا؟ یہ سن کر اینا نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا اور چند قدم دور ہو گئی۔ ٹینزلر حیرت سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا، پھر دھیرے دھیرے اس روح جیسی لڑکی کا چہرہ تبدیل ہونے لگا اور کچھ ہی دیر بعد اس کا چہرہ مکمل طور پر بدل گیا۔ اب وہاں ایک اور حسین لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کا رنگ گورا، اس کی لمبی زلفیں کالی اور آنکھیں چمکدار تھیں۔ اس کا چہرہ پہلی نظر آنے والی لڑکی سے کہیں زیادہ حسین اور دل فریب تھا۔ اس کے بے پناہ حسن کو دیکھتے ہی کارل ٹینزلر اپنی جگہ بت بن گیا۔ وہ بہت خوبصورت اور حسن و جمال کا مجموعہ تھی۔ اس لڑکی کا چہرہ اس کے دل و دماغ پر نقش ہو گیا۔
टेंजलर अभी उस लड़की की तरफ महवियत से देख ही रहा था कि उसे अपने पीछे आवाज सुनाई थी। यही है वो लड़की, यही है वो लड़की। टेंजलर ने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था, सिर्फ आवाज थी। उसने सीधा होकर लड़की की तरफ देखा मगर अब वहां कुछ भी नहीं था। वो लड़की भी गायब हो चुकी थी और अब वहां सिर्फ कब्रें दिखाई दे रही थी और कब्रिस्तान में मौत की सी खामोशी के सिवा कुछ नहीं था। टेंजलर अपने सपने से जाग गया और बिस्तर पर उठ बैठा। वो अपने बिस्तर पर अपने कमरे में मौजूद था। कमरे में और कोई नहीं था, सिर्फ अकेला टेंजलर था। कमरे की खिड़की खुली हुई थी और यखबस्ता हवाओं के जोर से पर्दे हिल रहे थे। टेंजलर एक ज़हीन लड़का था। वो 8 फरवरी 1877 को जर्मनी में पैदा हुआ था। वो बचपन से ही बहुत ज़हीन था। उसने इल्म फल्कियात, साइंस, रोबोटिक्स, इलेक्ट्रिकल और एस्ट्रोलॉजी में गहरी दिलचस्पी रखता था। वो इतना ज़हीन था कि जब वो स्कूल में था तो उसने एक एयर ग्लाइडर भी बना लिया था, लेकिन बच्चा होने की वजह से उसको ये ग्लाइडर उड़ाने का लाइसेंस नहीं मिला। कार्ल टेंजलर को साइंस में शदीद दिलचस्पी थी। उसने इंसानी जिस्म के बारे में एक एक चीज़ को बारीक बीनी से पढ़ा। उसने बायोलॉजी और अद्वियात के मुतालिक भी भरपूर इल्म हासिल किया। वो एक जीनियस था, लेकिन उसने इन सब में कोई डिग्री हासिल करने की कोशिश नहीं की। उसने मैथ के साथ अपना मास्टर मुकम्मल किया। 1909 में वो सिडनी चला गया और वहाँ हुकूमत के लिए सिविल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के तौर पर काम करने लगा। उस वक्त पहली जंग अजीम बहुत करीब थी। उसने पहली जंग अजीम में फौजियों और ज़ख्मियों के एक्सरे करने के लिए बतौर एक्सरे टेक्नीशियन अपना काम किया। टेंजलर जिंदगी भर उस ख्वाब को कभी फरामोश नहीं कर सका। ख्वाब में दिखाई देने वाली लड़की का चेहरा और उसके खद्दो-खाल उसके हाफजे पर नक्श हो चुके थे। टेंजलर ने उस लड़की को तलाश करने की बहुत कोशिश की मगर वो लड़की कहीं नहीं मिली। 1920 में वो वापस जर्मनी आ गया। वक्त पर लगाकर उड़ता रहा और उसकी शादी भी हो गई, लेकिन उस काले बालों वाली लड़की से नहीं बल्कि डोरिस टेंजलर नामी लड़की के साथ उसकी शादी हुई। उसकी 2 बेटियां भी पैदा हो चुकी थीं, लेकिन अभी तक कार्ल टेंजलर को वो चेहरा कहीं दिखाई नहीं दिया। 1929 में जर्मनी की मुआशी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। उसकी इकॉनमी काफ़ी बुरी तरह पिट चुकी थी और लोग मुल्क छोड़ छोड़ कर भाग रहे थे। टेंजलर और उसकी बीवी ने फैसला किया कि वो जर्मनी छोड़कर अमेरिका चले जाएं और फिर वो जर्मनी को खैराबाद कहकर अमेरिका के सेंट्रल फ्लोरिडा में शिफ्ट हो गए। उसकी अपनी बीवी से नहीं बन रही थी और आए रोज़ उनके दरमियान लड़ाई झगड़े मामूल थे। एक मर्तबा लड़ाई इतनी ज़्यादा हुई कि टेंजलर अपनी बीवी से लड़ झगड़ कर सेंट्रल फ्लोरिडा से 400 किलोमीटर दूर वेस्ट की टाउन में मुंतकिल हो गया, जहां उसे एक अस्पताल में एक्सरे टेक्नीशियन की मुलाजमत मिल गई। और यहाँ से सनसनी खेज और रोंगटे खड़ी कर देने वाली दहशतनाक दास्तान का आगाज होता है। कार्ल टेंजलर 49 बरस का हो चुका था। एक रोज़ टेंजलर एक्सरे टेक्नीशियन की हैसियत से अपनी रोज़मर्रा की ड्यूटी पर मौजूद था कि एक औरत कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में एक्सरे करवाने की एक पर्ची थी। उसने वो पर्ची कार्ल टेंजलर को दी और कहा उसे अपनी बेटी का एक्सरे करवाना है। टेंजलर ने उसे अपनी बेटी को अंदर बुलवाने का कहा और जब वो लड़की कमरे के अंदर दाखिल हुई तो गोया सब कुछ थम सा गया। टेंजलर बुत बना उस लड़की को देखते का देखता रह गया, जिसके बाल स्याह, रंग गोरा और आंखें चमकदार थीं। वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की थी कि जिसका ख्वाब उसने लड़कपन में देखा था। ये वही सूरत थी कि जिसको ढूंढते ढूंढते वो ना जाने कहां से कहां दर बदर फिरता रहा था और जिसकी जान बचाने के वादे की खातिर उसने दुनिया जहान के उलूम सीखे थे। वो लड़की टेंजलर को अपनी जानिब इस कदर महवियत से देखे जाने पर झेम सी गई। उसने झिझकते हुए नजरें चुरा ली और इधर उधर देखने लगी। अचानक उस लड़की को खांसी का दौरा पड़ा
और वो बुरी तरह खांसने लगी। टेंजलर गोया होश में आया और उसने लड़की को जल्दी से पानी पेश किया। लड़की ने पानी पिया और कुछ देर बाद उसकी हालत संभलने लगी। उस लड़की की मां ने टेंजलर को बताया कि उसकी बेटी को खांसी की बीमारी है और इसलिए वो उसका एक्सरे करवाने आई है। लड़की की मां ने जब बताया कि उसका नाम अलीना है तो टेंजलर ने इस तरह सर हिलाया जैसे वो जानता था कि उस लड़की का नाम अलीना ही होगा। उसने अलीना का एक्सरे लिया और फिर वो ये देखकर दिल गिरफ्ता हो गया कि अलीना को ट्यूबिकोसिस यानी टीबी है। उस जमाने में टीबी ला इलाज मर्ज था। किसी को टीबी हो जाने का साफ और वाज़ेह मतलब ये था कि उसकी मौत लिखी जा चुकी है। यही वजह थी कि टेंजलर अलीना को टीबी में मुब्तला देखकर बहुत उदास हो गया। फिर उसको वो ख्वाब याद आया कि जिसमें उसने वादा किया था कि वो अपनी ज़िंदगी में आने वाली अलीना नाम की इस लड़की को बचाने की हर सूरत हर मुमकिन कोशिश करेगा और उसे हर सूरत जिंदा रखेगा। उसने अलीना की जान बचाने के लिए कई किस्म की अद्वियात दरियाफ्त करने की कोशिश की। उसने दिन रात एक करके मुख्तलिफ फार्मूले बनाए और उनको अलीना पर आजमाता रहा। उसने अनगिनत कोशिशों के ज़रिए अलीना की टीबी को ख़त्म करने की कोशिश की और टीबी का इलाज ढूंढता रहा। अलीना के घर वाले टेंजलर की इन कोशिशों की बहुत कदर करते थे कि वो उनकी बेटी की जान बचाने के लिए इस कदर कोशिशें कर रहा है। अलीना के लिए टेंजलर की वराफ्तगी सबको महसूस होती थी। सब लोग उसकी कदर करते थे और उसकी कोशिशों को सराहते थे, लेकिन 1 साल की जान तोड़ मेहनत भी किसी काम न आ सकी और 1 साल बाद 31 अक्टूबर 1931 को अलीना अपनी जान की बाजी हार गई। वो मर गई। अलीना की मौत टेंजलर के लिए किसी ताजियाने से कम नहीं थी। उसने उसी की जान बचाने की खातिर ही तो ये सब कुछ किया था, मगर वो उसको जिंदा ना बचा सका। वो बहुत दिलगीर रहने लगा। उसने अपने पैसों से अलीना का घर खरीद लिया और वो कई दिनों तक उस घर में बंद रहता था। वो अलीना के बेड पर सोता था और उन्हीं बर्तनों में खाना खाता था कि जिन बर्तनों में कभी अलीना ने खाना खाया था। वो घंटों तक दीवार पर लगी अलीना की फोटो उसको तकता रहता और उस घर में अलीना की मौजूदगी और उसकी यादों को महसूस करने में गुम रहता। उसने अलीना की आखिरी रसूमात भी अपने पैसों से पूरी की थी और उसने अलीना के घर वालों की इजाज़त से उसके लिए एक छोटा सा मकबरा भी बनवाया था, जिसके अंदर वो दिन रात घंटों तक अलीना की कब्र के पास बैठा रहता और रात के सन्नाटे में अलीना के मकबरे के अंदर से उसके कब्र के पास मौजूद अकेले टेंजलर की सिसकियां गूंजती रहती। वो खुद को मुजरिम समझकर अलीना से माफिया मांगता रहता और उसके रोने की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देती थी। अलीना के घर वालों ने कई मर्तबा टेंजलर को ऐसा करने से मना किया, लेकिन वो बाज ना आया। फिर कई हफ्ते और कई महीने गुजरने लगे, यहाँ तक के 7 बरस गुजर गए, लेकिन टेंजलर के मामूल में कोई फर्क नहीं आया। फिर आखिर एक रोज अलीना की बहन फ्लोरेंडा के सब्र का पैमाना भर गया। उसने टेंजलर को अलीना के मकबरे में जाने से रोकने, मकबरे की चाबी लेने और ये तमाशा ख़त्म करने के लिए उससे बात करने का फैसला किया। फ्लोरेंडा के मुताबिक एक रात जब वो टेंजलर के घर पहुंची तो कमरे की खिड़की से रोशनी छिन छिन कर बाहर आ रही थी और खिड़की खुली होने के बायस रोमांटिक म्यूजिक बजने की आवाज़ें बाहर आ रही थी। एक लम्हे के लिए फ्लोरेंडा ने सोचा कि वो वापस चली जाए, क्योंकि कमरे की खुली खिड़की से उसने टेंजलर को रोमांटिक म्यूजिक पर किसी लड़की के साथ रक्स करते हुए देख लिया था। लेकिन फ्लोरेंडा ने आज तहैया किया हुआ था कि वो टेंजलर से बात करके रहेगी, सो उसने टेंजलर के घर का दरवाज़ा बजाया। म्यूजिक की आवाज़ बंद हो गई और मुकम्मल खामोशी छा गई। दरवाजे के पीछे से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी और टेंजलर ने
दरवाजे को जरा सा खोलकर बाहर झांका। अधखुले दरवाजे से बाहर अलीना की बहन फ्लोरेंडा को देखकर टेंजलर ने उससे यहाँ आने की वजह दरियाफ्त की। फ्लोरेंडा ने उससे कहा कि वो अलीना के सिलसिले में बात करने के लिए आई है, लेकिन टेंजलर ने निहायत गुस्से से उसे चले जाने का कहा और दरवाज़ा बंद करने लगा। दरवाज़ा बंद करने के दौरान फ्लोरेंडा की नज़र कमरे के अंदर मौजूद एक कुर्सी पर पड़ी कि जिस पर वो लड़की मौजूद थी जिसके साथ ज़रा पहले टेंजलर रक्स कर रहा था, और फ्लोरेंडा के जिस्म में सर्द लहर सी दौड़ गई, क्योंकि उस कुर्सी पर कोई और नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन अलीना मौजूद थी, जो कि 7 साल पहले मर चुकी थी। फ्लोरेंडा खौफ और तजब्जुब के आलम में टेंजलर के घर से चली आई और सीधा पुलिस स्टेशन चली गई। पुलिस ने जब टेंजलर के घर छापा मारा तो वो ये देखकर हैरान रह गए अलीना की बॉडी टेंजलर के बिस्तर पर मौजूद थी। टेंजलर ने एतराफ़ किया कि वो अलीना की मौत के बाद उसके मकबरे में जाता था और अलीना उससे घंटों तक बातें करती थी। वो उसकी फरमाइश पर उसको गाने सुनाता था और उसका दिल बहलाने के लिए वो अलीना की हर ख्वाहिश पूरी करता था। उसने बताया कि अलीना की मौत के 2 साल बाद अलीना ने उससे कहा वो यहाँ डर महसूस करती है, इसलिए टेंजलर उसको कब्र से निकाल कर अपने घर ले जाए। टेंजलर ने अलीना की मौत के 2 साल बाद ही अलीना को उसकी कब्र से निकाला और रात के वक्त एक लंबी सी गाड़ी में डालकर अपने घर ले गया, लेकिन उसने मकबरे पर जाने का मामूल न छोड़ा ताकि किसी को शक न हो सके। टेंजलर ने मुख्तलिफ केमिकल्स के जरिए अलीना के जिस्म को पहली जैसी हालत में लाने की कोशिशें की। हज़ारों तरह के महलूल और केमिकल्स उसके जिस्म में इंजेक्ट करने की कोशिशें करता रहा। अलीना के चेहरे को महफूज बनाने के लिए प्लास्टर पेरिस के जरिए उसको पहला जैसा बनाने की भी कोशिश की। उसकी आंखों के गड्ढे में शीशे की आंखें बनाकर फिट कर दी। उसके जिस्म का कुदरती वजन दोबारा हासिल करने के लिए टेंजलर ने अलीना के मुर्दा जिस्म को खाना खिलाने की भी कोशिश की। उसके मुताबिक अलीना अपनी फरमाइशें कर करके उससे चीज़ें मंगवाती थी। टेंजलर ने अलीना के जिस्म की हड्डियों को जोड़ने के लिए गिटार की तारों का इस्तेमाल किया। हैंगर्स और मुख्तलिफ कपड़ों के टुकड़े उसके जिस्म में भर दिए और उसके जिस्म की बदबू ख़त्म करने के लिए वो कई तरह के परफ्यूम्स अलीना के जिस्म पर डालता रहा। उसने एक ट्यूब अलीना के मखसूस आज़ा में दाखिल कर दी थी और इस तरह वो अलीना का जिनसी इस्तेहसाल भी करता रहा। टेंजलर के बकौल अगर वो अलीना के जिस्म को खला में भेजने में कामयाब हो जाए तो अलीना दोबारा से जिंदा हो सकती थी। इस मकसद के लिए उसने एक एयरक्राफ्ट नुमा चीज़ भी ईजाद कर रखी थी और उसकी अगली कोशिश थी कि किसी तरह अलीना को खला में भेज सके। ये सब कुछ सुनकर पुलिस वालों समेत सबके चेहरे हैरत से गुंग होकर रह गए। अलीना की लाश का पोस्टमार्टम हुआ तो इंकशाफ हुआ कि अलीना की मौत जहर के बाइस हुई थी। अलीना के जिस्म को कुछ अरसे के लिए उसी के मकबरे के सामने पब्लिक के लिए रख दिया गया और रोज़ाना कई अफराद वहां आकर इस हैरत अंगेज वाक़े को अपनी आंखों से देखते थे। अमरीकी और इंसानी तारीख में इस जैसी मिसाल कहीं नहीं मिलती। टेंजलर पर मुकदमा बना, लेकिन अमेरिका में इस तरह के वाक़े का कोई कानून ही नहीं बना था, इसलिए उसको सज़ा न हो सकी। पहले पहल तो टेंजलर ने इन तमाम बातों को झूठ करार दिया, मगर उसने अपनी मौत से कबल एक किताब लिखी जिसमें उसने इन तमाम बातों की तस्दीक की थी और यह भी इंकशाफ किया था कि अलीना की बीमारी की अजियत को देखकर टेंजलर ने खुद ही अलीना को जहर दे दिया था ताकि वो उस बीमारी की अजियत से बच जाए और बाद में वो उसको जिंदा कर देगा। टेंजलर ने अपनी बाकी तमाम उम्र एक डॉल के साथ बसर की जो बिल्कुल अलीना जैसी लगती थी। वो सबसे अलग दूर कहीं मुंतकिल हो गया था और किसी से नहीं मिलता था
پھر آخر 1952 کو 75 برس کی عمر میں ایک روز ٹینزلر کا آخری وقت آ پہنچا۔ وہ اٹھا، اس نے الینا کی ڈال کو بستر پر لٹایا اور اس کے ساتھ لپٹ کر اسے گلے لگا لیا۔ پھر اس نے آخری ہچکی لی اور اس کا جسم روح سے خالی ہو گیا۔ کئی روز تک کسی کو اس کی موت کی خبر ہی نہ ہو سکی۔ اس کے عزیز و اقارب کو جب اس کی لاش ملی تو وہ الینا نامی ڈال کو گلے لگائے ہوئے تھا۔ بعد میں چھپنے والے آرٹیکل سے ایک خوفناک بات کا انکشاف ہوا۔ الینا کے گھر والوں نے ٹینزلر سے محفوظ رکھنے کے لیے الینا کی باڈی کو نامعلوم مقام پر دفن کر دیا تھا، لیکن بعد کی تحقیقات میں یہ بات ثابت ہوئی کہ ٹینزلر نے خفیہ طریقے سے بھاری رقم دے کر الینا کی باڈی کو دوبارہ حاصل کر لیا تھا، اور جس ڈال کو گلے لگا کر وہ مر گیا تھا وہ اسی الینا ہی کی لاش تھی۔